برداشت کو اگر آپ نے برداشت کیا ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے. چند گھنٹوں کی اگر تکلیف کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا ہے تو آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ کل قیامت کے دن جب بھوک اور شدت پیاس کی شدت سے سارے لوگ پریشان ہوں گے، ایسی صورت میں ان روزے داروں کو اللہ پاک رب العالمین جنت کا ایک ایسا شراب پلائے گا، ایک ایسا شراب پلائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 سال تک دوبارہ اس انسان کو پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی. تو کیا یہ تحفہ ان لوگوں کو بھی ملے گا جو تندرست رہ کر بھی روزہ نہیں رکھے، رمضان میں بھی شراب کا نشہ کیا، رمضان میں بھی دنیا داری کو نہیں چھوڑ پایا، رمضان میں بھی کھانا پینا جاری رکھا، اور جاری ہی نہیں رکھا، برائی میں یہاں تک لطف ہو گیا، ملوث ہو گیا کہ اس بدبخت کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس مبارک مہینے میں کم از کم برائی سے دور رہے. اللہ نے توفیق نہیں دی، شراب کا نشہ کیا، جتنے ناجائز کام تھے وہ تمام کام کیے، اللہ کے نافرمانی کی ساری حدیں توڑ دی. ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بدبختوں کے لیے جنت کا یہ شراب نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا ایک ایسا وادی ہے جس کے اندر اللہ پاک رب العالمین نے ان لوگوں کو ڈال رکھا ہے جو لوگ دنیا میں بدکاریاں کیا کرتے ہیں. ان عورتوں کا ایک جہنم ایسا ہے، مردوں کا ایک جہنم ایسا ہے جس کے اندر صرف انہی کیٹیگری کے مرد اور عورت جائیں گے جو دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے. اور جب ان کا جسم گلے گا جہنم کی آگ میں، جب ان کا جسم گل گل کر نکلے گا، ان کی شرمگاہوں سے جب خون نکلے گا اور وہ جا کر ایک حوض میں جمع ہوگا اور اس کے نیچے سے بھی اللہ آگ کو کھولائے گا. جس طرح سے ہماری مائیں بہنیں کھانا پکاتی ہیں، ہانڈی میں پانی کھولتا ہے، اسی طرح وہ حوض کھولے گا اور ایسے بےایمانوں کو، ایسے شیطانوں کو، ایسے شرابیوں کو، ایسے مکاروں کو اللہ پاک رب العالمین وہ زناکار مرد اور عورتوں کی بہتی ہوئی گندگیوں کو قیامت کے دن پلائیں گے. روزہ چھوڑنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، تمام چیزیں میسر رہتے ہوئے بھی نہیں روزہ رکھا تم نے. انتظار کرو اس دن کا، زیادہ وقت دور نہیں ہے، بس سانس نکلنے کی دیر. کتنا گھمنڈ ہے پیسوں پر، دولت پر، کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ یہ کسی کا نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن اس کا صحیح یوز کون کرتا ہے یہ اللہ دیکھتا ہے. چند پیسے ہو گئے تو شراب کے نشے میں ڈوب گئے. کیا ہارون، کامان، فرعون سے زیادہ طاقتور اور دولت مند اللہ نے تمہیں بنا دیا؟ جس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹنیاں ڈھویا کرتی تھی، اس سے بھی زیادہ امیر ہو گئے، اس سے بھی زیادہ پیسے والے ہو گئے. اتنی نافرمانی کہ رمضان میں بھی شراب پینا نہیں چھوڑا تم نے. خیر، جیسا کرم کرو گے بھگتو گے، خالی وقت کا انتظار کرو. اور کیا ہے ان نمازیوں کے لیے، ان روزے داروں کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادتیں کی، مکمل تراویح کی نمازیں جن روزے داروں نے پڑھی، جن لوگوں نے اعتکاف کا عمل کیا، جن لوگوں نے لیلۃ القدر کی رات جاگی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک رب العالمین نے جنت میں وہ تمام نعمتیں رکھی ہیں میرے دوستو، جن کے بارے میں نہ کبھی آپ کے دل نے سوچا ہوگا، جس کے بارے میں نہ کبھی کسی کے ذہن میں خیال بھی آیا ہوگا، جس کے بارے میں نہ کبھی کسی
इंसान ने सोचा भी होगा कि ऐसी ऐसी नियामत हमें मिलेगी। एतकाफ करने वालों मुबारक हो तुम्हें कि नबी ने फरमाया जो लोग एतकाफ के लिए बैठते हैं, जो अल्लाह के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, आखिरी उशरे में एतकाफ करते हैं, जब ईद की नमाज के लिए वो निकलते हैं अपने घरों से सज धज कर, तो वो ऐसे निकलते हैं जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको दुनिया में जना हो। मुबारक हो आपको कि आपकी तमाम गुनाह अल्लाह ने माफ कर। ये खुशकिस्मती है उन लोगों की जिन लोगों ने इत्तिकाफ किया मेरे भाइयों। जन्नत की खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने लैलतुल कद्र की रात जागी, कि जिसके बारे में अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कलाम पाक में कह दिया कि 1000 महीने की रात से बेहतर रात ये। और क्या चाहिए अब जन्नत लेने के लिए, और क्या चाहिए बताइए। अल्लाह ने हर आसान से आसान रास्ता हमारे लिए खोल दिया, फिर भी हमें मुयस्सर नहीं हुआ। दुनिया की मसरूफियात में रमजान गुजार दिए, और मेरे नबी ने कहा बदनसीब है वो इंसान, बदकिस्मत है वो इंसान जिसने रमजान का महीना पाया और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत नहीं करा पाई। ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबरे मस्जिद पर चढ़ रहे हैं और आमीन 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 कह रहे हैं, 3 मरतबा आमीन कह रहे हैं, फिर खुतबा देते हैं। सहाबाए किराम खुतबा के बाद सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह आज आपने ऐसी बात कही जो आज से पहले आपको हमने कहते हुए नहीं देखा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा सुनो, जब मैं मिंबर के पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा था, मेरे पास जिब्राइल तशरीफ लाए और कहे कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स मन अदरक रमजान फलम युगफर, जिसने रमजान का मुबारक महीना पाया और रो धो कर अल्लाह से अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं करा पाई। सो कर अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत कराओगे रब से? क्या एक इंसान जो मस्जिद में 24 घंटा रहकर रोता है, अल्लाह से दुआ करता है, और एक इंसान जो 24 घंटा बिस्तर में पड़ा रहता है, सोया रहता है, दोनों बराबर होगा क्या? दोनों एक जैसे हो जाएंगे? पता नहीं। इसके बाद अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम में से किस किस को रमजान अता करेगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। जिसने अपनी मग़फ़िरत अल्लाह से करा ली वो खुशकिस्मत, जिसने एतिकाफ मस्जिद में बैठकर 10 दिन कर लिया वो खुशकिस्मत, जिसने लैलतुल कद्र की रात को जाग लिया वो खुशकिस्मत है मेरे भाइयों। और ये खुतबे में चढ़कर हम लोग उलमाए किराम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये उस ज़बान की बात है कि पूरी कायनात झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे नबी की ज़बान से निकली हुई एक लफ्ज़ भी झूठी नहीं हो सकती। और मेरे नबी ने हदीस के अंदर फरमा दिया, मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। सही बुखारी की रिवायत है कि जिस शख्स ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह पर ईमान और यकीन रखते हुए लैलतुल क़द्र की रात को जाग लिया, अल्लाह उसकी जिंदगी की पिछली तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। तो जितने लोगों ने लैलतुल कद्र को ईमान के साथ जागा के इस नियत से कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है, उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत हो गई है। ये नबी की ज़बान है मेरे, ये किसी आलिम की ज़बान नहीं है, ये नबी की ज़बान है। जिन लोगों ने 10 दिन का इत्काफ किया इस नियत से कि ऐ अल्लाह तेरे दरबार में आकर, तेरे घर में आकर पड़ाव डाल दिया 10 दिन के लिए, पूरी जिंदगी जितनी नाफरमानियां की हैं, अल्लाह उन गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता हूँ तुझसे।
जितनी नमाजें हमसे छूट गई अल्लाह तो उसकी मगफिरत चाहता हूँ तुझसे। ऐ अल्लाह मौत की शिद्दत से पनाह चाहता हूँ। ऐ अल्लाह मरने के बाद कब्र के आजाब से पनाह चाहता हूँ। मेरे भाइयों यकीन करो ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह के नबी का वादा है कि अगर आपने इस नीयत से इत्काफ किया है, कसम खुदा की आपने जितनी भी चीजें अल्लाह से मांगी है और जितनी चीजों का नबी और मेरे रब ने वादा किया है वो तमाम चीजें आपके लिए लिख दी गई है। कब मौका मिलेगा जिंदगी में? कितनी नाफरमानियां करोगे, कितना शर्कश करोगे इस सरजमीन पर। सदियों से सुनते चले आ रहे हैं, फिर भी जब रमजान का महीना गुजरता है तो वही हाल मस्जिद खाली की खाली पड़ी रहती है पूरे के पूरे साल। और जैसे रमजान का महीना आता है सारे के सारे नमाजी बन जाते हैं। ऐसे गद्दारों को, ऐसे बेईमानों को, ऐसे शैतानों को जो सिर्फ मक्कारी करने के लिए मस्जिद में आते हैं, अल्लाह को धोखा देने के लिए मस्जिद में आते हैं। ये रमजान का महीना आता है नमाज पढ़ने लगता है, जैसे रमजान का महीना गुजर गया नमाजें खत्म हो गई, मस्जिद से वास्ता खत्म हो गया। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। कुरान में अल्लाह ने इन लोगों के लिए, इन नमाजियों के लिए ऐसी दर्दनाक अज़ाब का ऐलान किया है कि जहन्नम का सबसे निचला तबका इन बेईमानों के लिए अल्लाह ने बना कर रखा है। क्या रमजान गुजरने के बाद नमाजें छोड़ देंगे हम? क्या सिर्फ रमजान में ही हमारे ऊपर नमाज़ें फर्ज हैं? मेरे भाइयों, जब तक आपकी सांस में सांस है, जब तक इस जिस्म में रूह है, जब तक आपके दिमाग में अल्लाह ने होश और अकल रखा है, मरते दम तक नमाज माफ नहीं है। आज के इस आखिरी जुमे में अल्लाह से वादा करके यहाँ से जाओ कि अल्लाह जितना दिन जिंदा रहेंगे आज के बाद कभी इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी नियामत अल्लाह ने हम लोगों को दी है। हम लोगों ने इसकी कद्र को नहीं जाना। ये चले गए, गुजर गए हमसे, क्या पता फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हमारी माएँ और बहनें, वो इस्लाम की औरतें, इस्लाम की माओं और बहनों, सुनो, आपने अपनी नींदों को हराम करके हमारे लिए खाना पकाया। जब सबसे ज्यादा भूख और प्यास की शिद्दत महसूस होती है उस वक्त इफ्तारी की तैयारी आप हमारे लिए करते हैं। अल्लाह ने जन्नत में आपके लिए वो मकाम रखा है। अल्लाह ने जन्नत में हमारी माओं और बहनों के लिए ऐसी जगह रखी है जिसके बारे में ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे इस्लाम की बहनों, इस्लाम की माओ, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कीमती जन्नत लेने के लिए बस चंद काम तुम करो। मैंने कई बार रिपीट किया, फिर एक बार कहता हूँ कि ऐ मेरी माओ और बहनों, आपने पूरे रमजान मेहनत की है, आपने उठ कर सहरी बनाई है, आपने इफ्तारी से कबल अपनी परेशानियों को एक तरफा रख करके इफ्तारी की तैयारी करके हमें इफ्तारी कराया। ऐ मेरी माओ और बहनों, अगर आपने 5 वक्त की नमाज आपने अदा कर ली, अपने शौहर की आपने इताअत और फरमाबरदारी कर ली, रमजानुल मुबारक के महीने की रोजा आपने रख ली, मेरे नबी की हदीस है फलतदखुलिल जन्नत मिन अय्यि शाअत, कि जिस जन्नत के जिस दरवाजे से भी आप जाना चाहें, जब मैदान महशर में अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन जन्नतियों को एक तरफ करेंगे, जहन्नमियों को एक तरफ करेंगे, तो हमारी इस्लाम की माओं और बहनों को, जिन लोगों ने इस हदीस पर अमल किया, ऐसी माओं और बहनों को एक तरफ करके अल्लाह कहेगा कि ऐ मेरी बंदियों, ये जन्नत के 8
पसंद हो उसी दरवाजे से तुम जन्नत के अंदर चली जाओ। मेरी माँ और बहनों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत सवाब का काम किया है, और इसका जजा अल्लाह छोड़कर कोई दे ही नहीं सकता। इन रोजेदारों को आपने सहरी बनाकर खिलाया, इन रोजेदारों के लिए आपने इफ्तारी की तैयारी की। जिस वक्त लोग भूख और प्यास से निधार रहते हैं, ऐसे वक्त में आपने मेहनत करके इफ्तारी का सामान तैयार किया। कसम खुदा की, इसका बदला कोई नहीं दे सकता, और रोजा का बदला तो कोई दे ही नहीं सकता। मेरे नबी ने कह दिया, अल्लाह खुद कह रहा है कि ऐ मेरे फरिश्तों, रमजानुल मुबारक के महीने में जितनी भी इबादत बंदे करते हैं और गैर रमजान में भी, वो तमाम इबादत की नेकियों को तुम लिखो, मगर रोजा की नेकी को नहीं लिखना। किसी फरिश्ते की कलम में इतनी ताकत अल्लाह ने नहीं दी है। अल्लाह ने किसी फरिश्ते को भी नहीं बताया है कि मेरा जो बंदा रोजा रखता है, उस एक रोजे के बदले में उसे मैं कितना सवाब देने वाला हूँ। अल्लाह ने कहा है, फरिश्ते तुम्हारी कलम में वो ताकत नहीं दी है हमने कि तू मेरे बंदे की रोजे की नेकी को लिख सके। इसलिए जो मेरा बंदा रोजा रखता है, उसकी नेकी को छोड़कर तमाम नेकियों को तुम लिखो। कयामत के दिन जब ये रोजादार बंदा मेरे सामने आकर खड़ा होगा, तो उस वक्त मैं इन रोजेदारों को दुनिया में रोजा रखने का बदला ऐसा अदा करूंगा, ऐसा अदा करूंगा कि ये रोजेदार भी देख कर ये कहेंगे कि ऐ अल्लाह, हमने तो कभी इतना सोचा ही नहीं था, इतना मिले। और लास्ट चंद बातें मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है कि हमारे समाज में सिर्फ पैसे वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं। नहीं, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हमारे यहाँ लाचार, बेबस, फकीर, गरीब, मजदूर, यतीम, पैसे वाले, हर किस्म के लोग रहते हैं। सामने ईद आ रहा है, हर कोई फितरा अदा करेंगे और करने के बाद ईद की नमाज पढ़ेंगे। सिर्फ एक बात कि फितरा से मुताल्लिक जितने भी आइम्मा इकराम और उलमा इकराम हैं, तमाम लोगों का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सबसे बेहतर तरीका जो नबी से राइज है, अनाज। लेकिन अगर अनाज मैसर ना हो या अनाज के बदले अगर कोई रकम देना चाहे उसकी कीमत के बराबर, तो वो भी दे सकते हैं। मसलन एक आदमी फितरा किन लोगों के लिए, ये सदका जो निकाला जाता है किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो साइल हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, कि ईद के दिन वो मांगने ना जाए, हाथ ना फैलाएं, उस दिन खुशी में वो भी शरीक हो। अगर आप सिर्फ अनाज ही देंगे तो एक आदमी के पास मान लीजिए अनाज हो गया, लेकिन उसको चीनी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, उसको मिठाइयाँ बनाने के लिए तेल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो वो चीज़ें, वो पैसे उनके पास है नहीं, तो कहाँ से आएगा? फिर तो उनको हाथ फैलाना पड़ेगा। इसलिए हालात और ज़रूरत और वक्त को देखते हुए अनाज के साथ साथ अगर कोई उसकी कीमत भी अदा करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि सिर्फ रमजानुल मुबारक का महीना का रोज़ा रखने के बाद ईद मना लेना खुद से ये ईद नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप अपने सिर्फ और सिर्फ अपने अड़ोस पड़ोस की तरफ ध्यान दें। ज्यादा अगर इधर उधर नहीं दे सकते हैं तो हर इंसान अपने पड़ोसी को देखे, किस हाल में है मेरा पड़ोसी। हो सकता है कि आपके पड़ोस में एक ऐसे शख्स का घर हो जो महीनों से, सालों से बीमार पड़ा हो, जिनके यहाँ खाने पीने के लाले पड़े हुए हों, जिनके बच्चे कपड़े के लिए तरस गए हों, आपके बच्चों का कपड़ा देखकर जिनके बच्चे घर में जाकर रो रहे हों, तंग कर रहे हो अपने वालिदैन को कि हमें भी ईद के लिए नया कपड़ा चाहिए। अगर गैरतमंद होगा तो वो मुंह नहीं खोलेगा किसी के सामने, लेकिन अगर आपने नजरअंदाज कर दिया, हमने नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ बनाई, अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े सजाए, नए नए कपड़े खरीदे,
اور ان پڑوسیوں کو، ان بے بس لوگوں کی طرف ہم نے نظر نہیں کی تو میرے بھائیوں آپ کی عید نہیں ہو، اس کا بھی حساب اللہ کے پاس آپ کو دینا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج تو ہر گھر میں فراوانی ہے، نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے بھی غریب تھے، آج بھی غریب ہیں اور قیامت تک غریب رہیں گے لوگ، مزدور بے بس لوگ رہیں گے۔ اور ان کی طرف نگاہ آپ کو، ہم سب کو، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، اٹھانی ہے۔ یہ چند روز اور بچے ہوئے ہیں، 2-3 روز میرے بھائی، سب کوئی دیکھیں کون غریب ہے، کون یتیم ہے، کس کے پاس کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے کیا نہیں ہے، اپنے سے جا کے پتہ کرے، چپکے سے، کسی کو بول کے نہیں، رات میں اکیلے جائیے، پتہ کیجئے بھائی آپ کے گھر میں کیا ہے کیا نہیں۔ جو ضرورت کی چیزیں ہیں چپ چاپ خرید کر لا کر انہیں دے لیجیے عید سے پہلے۔ یہ صدقہ کیجئے میرے بھائیوں، یہ نیکی کیجئے۔ پتہ نہیں زندگی کی کتنی گناہ ہم نے کیا ہے جو کوئی نہیں جانتا ہے اللہ کے سوا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہماری کسی عبادت کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور ہماری ساری گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت کا حقدار بنا۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، آخر میں آپ سب سے یہی کہہ کر رخصت ہوں گا کہ میرے بھائیوں، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ مسلمان جو مسلم ایمان والا ہوتا ہے، جو مکمل ایمان والا ہوتا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور مکمل ایمان والا، مکمل مسلمان کون ہوگا؟ عید کی نماز کے بعد آپ کو مسجد میں نظر آتا ہے۔ خدا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنی بھی آپ نے نافرمانیاں نمازیں چھوڑ کر کیا، نماز کے بارے میں اس لیے بار بار بولا جا رہا ہے کہ دنیا کا ہر نیکی، ہر بھلائی، ہر تمام کے تمام اسلام کے احکام اور فرائض، ہر چیز نماز کے بعد آتی ہے۔ اگر آپ کے اندر نماز ہے تو آپ کی ہر عبادت قبول ہے۔ آپ کے اندر اگر نماز نہیں ہے تو پوری دنیا بھی اللہ کے راہ میں وقف کر دیجئے، پوری زندگی اللہ کے راہ میں وقف کر دیجئے، پوری زندگی جہاد میں گزار دیجئے، پوری دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے۔ اگر آپ کے اندر نماز نہیں ہے تو ایک بھی نیکی آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازیں پڑھا کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ عید کی نماز کے بعد اللہ سے وعدہ کیجئے کہ اے اللہ، عید کی نماز کے بعد بھی جس طرح سے ہم رمضان میں 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، رب العالمین تیرے اس گھر میں، تیرے سامنے اللہ روزے کی حالت میں وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا اللہ نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، کہیے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا